الحمدللہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ اب اعلیٰ رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے لاسٹ سیشن میں یہ پڑھا تھا ان کی فتوحات کے بارے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جو جنگ ہوئی اور جو فتوحات ہوئی اور جو ایریاز جو ہے نا اسلامی سلطنت میں ایڈ ہوئے ان کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم ان کے آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ان کے انتظامات تھے خلافت میں ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انتظامی امور میں کچھ بدلاؤ کیے اور کچھ جو صوبے تھے ان کے گورنر تھے ان کو بھی چینج کیا تاکہ جو ہے نا ہر حکمران جو ہے نا اپنے ٹائم پہ۔ ہاں نم سبیہ آپ کی آواز میں ایکو فیل ہو رہا ہے، مجھے فیل ہو رہا ہے یا واقعی ہے؟ سب ہاں کو ہو رہا ایکو آ رہا ہے، ہاں ایکو آ رہا ہے، ہلکا ہے؟ ایکو ہے۔ میں اپنا دوسرا لاگ آؤٹ کر دیتی ہوں۔ ہاں میں ان کے فتوحات اور جو اسلامی سلطنت میں ایریاز ایڈ ہوئے تھے، مطلب جو وہاں کے جو شہر یا سٹیز یا کنٹریز ایڈ ہوئے تھے ان کے بارے میں دیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے، کچھ تھوڑی روشنی ڈالیں گے ان کے جو انتظام میں خلافت میں جو انتظامات تھے اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں انتظامی امور میں کچھ بدلاؤ کیے تھے اور صوبوں کے گورنروں کو بھی چینج کیا تھا، کیونکہ ہر حکمران کا حکومت کرنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ صوبوں کے معاملات احسن طریقے سے چلانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ملک شام تھا حضرت عمر کے ٹائم پر وہاں میں 3 صوبوں میں تقسیم تھا، تو اس کو انہوں نے ایک قرار دیا تاکہ انتظامی طور پر اسے عمدہ طریقے سے کیا جا سکے، اس کے نتیجے بھی اچھے ملے۔ اس کے علاوہ آپ کے دور میں ارمانیہ، تبرستان، قبرص، تبارس فتح ہوئے تھے جو ہم نے پچھلی بار دیکھے تھے، ان کو الگ الگ صوبوں کا درجہ دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کافی فتوحات ہوئی تھی اور بہت سارا مال غنیمت بھی بیت المال میں جمع ہوا تھا، یعنی اس ٹائم پہ لوگوں کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اسی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو وظیفہ مقرر کیے، اور وظیفہ پہلے بھی حضرت عمر کے دور میں شروعات ہوئی تھی اس کی، حضرت عمر دیتے تھے، تو جو پہلے سے جن کو وظیفہ ملتا تھا ان کے جو اماؤنٹ تھا اس کا اضافہ بھی ان میں بھی انہوں نے اضافہ کیا اور نئے وظیفات بھی دینے شروع کیے تاکہ لوگ خوشحال ہو سکے۔ اس کے علاوہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو بھی سامان دیتے تھے، جیسے کہ شہد، کپڑا وغیرہ تقسیم کرنا، شہد ہے، کپڑا ہے، گھی ہے، یہ بھی تقسیم ہوتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منادی کرتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں، صبح صبح اپنے اپنے وظائف لیتے جاؤ، اور لوگ آتے اور لے کر جاتے۔ شام کو اعلان کرتے، آؤ اپنے اپنے روزینے لے کر جاؤ، لوگ قطار کے قطار آتے اور وہ لے کر جاتے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت غنی رضی اللہ عنہ نے عوام کی فتح اور ترقی کے لیے عوام سے رابطہ کی بھی ایک مہم شروع کی۔ ان کا ماننا تھا کہ ملک کے معاملات اور پرابلم کو جو ہے نا زمینی طور پہ اگر دیکھنا ہے تو وہاں کے لوگوں سے بات کی جائے۔ اس لحاظ سے انہوں نے ایک معاملہ شروع کیا کہ جمعے کی نماز کے خطبے سے پہلے وہ جو ہے نا جو ممبر ہے اس پر تشریف لاتے، اور جو دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے، جیسے سفر سے آتے ہیں نا لوگ، تو آئے ہوئے ہوتے ان سے معلومات کرتے، ان سے بات کرتے، وہاں کے خیریات معلوم کرتے، وہاں کی پرابلمز کو جانتے، اور اگر ان کو کچھ پرابلمز یا کچھ شکایت ملتی تو اس سلسلے میں وہ آپ جو ہے نا وہاں کے جو گورنر ہوتے ہیں ان کو خط لکھتے اور حکم جاری کرتے کہ جلد سے جلد اس کو سولو کیا جائے۔ وہ اپنے جو ان کے آس پاس جو لوگ ہوتے یا جو لوگ ان کے پاس آتے ان سے بہت اچھے سے ملتے، توجہ سے ان کی بات کو سنتے اور ان کی پرابلم کا جلد سے جلد سولوشن کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سبھی گورنروں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام الناس کو شکایت سنیں اور ان کے مسئلوں کو فوری طور پر حل کریں تاکہ ان کا اعتماد حکمرانوں پر بحال رہے، اور گورنر کو کسی بھی طرح کی رعایت نہیں تھی کہ شکایت
किसी भी तरह की रियायत हासिल नहीं थी। उनको उनकी शिकायत आती तो फ़ौरन नोटिस करते हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। इसकी मिसाल यह है कि हज़रत बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर बिन अल-आस हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु जब थे उनके एक मिस्र के उस टाइम पे वो गवर्नर थे। तो उनके खिरात में कमी आई तो उनको वहाँ गवर्नर से हटा दिया गया और दूसरे गवर्नर वहाँ पर मुंतखब कर दिए गए। उनकी खिलाफत का एक अहम सुतून ये भी था कि उन्होंने तमाम जो गवर्नर थे और हुक्मरान थे उन सब की जो जो माल और असबाब होता था, उनका जो पर्सनल भी होता था, उसका रिकॉर्ड बनवाया, मतलब उसको लिखवाया और टाइम टू टाइम उसकी तहरीक भी करते रहते। और जहाँ के गवर्नर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी पता चलता, वहाँ एक बंदा भेज के उनकी निगरानी के लिए रख देते। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इकाबर सहाबा कराम की एक कमेटी भी बना रखी थी, ताकि लोगों को कोई एतराज़ बाकी ना रह जाए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में फतवाहत के साथ-साथ इस्लाम की सल्तनत भी बेपनाह वसी हुई और महकमा फ़ौज को मज़ीद बढ़ाया गया और नए लोग शामिल किए गए और पहला बहरी बेड़ा तैयार किया गया, जिसे समुद्री इलाकों में भेजा गया और वहाँ पर उन्होंने उस बेड़े ने अपनी एक अच्छी धाक जमा रखी थी, जिसको हम पिछली बार देख चुके हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने गवर्नरों की सतह पर मजालिस शूरा कायम की, एक कमेटी कायम की, जहाँ पर सभी गवर्नर टाइम टू टाइम शामिल होते और अपनी-अपनी प्रॉब्लम आप रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रखते और इसकी सरबराही भी आप खुद करते। इस बात का ख़्याल रखा कि उन्होंने इस बात का भी ख़्याल रखा कि किसी के हुकूक पामाल नहीं होने चाहिए। उन्होंने सबके हुकूक का पूरा ख़्याल रखा। इस मामले में आपकी पॉलिसी वाज़ेह रही और आप रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह सहाबा कराम से मुख्तलिफ मौकों पर टाइम टू टाइम मशवरा भी लेते। कोई भी काम करने से पहले मशवरा करते। सारे जो सहाबा कराम थे उनके साथ। आपके दौरे खिलाफत में तामीरात भी बहुत हुई। उस पर भी काफ़ी तवज्जो दी गई। आपने सड़कें बनवाई, मेहमानखाने बनवाए, मस्जिदें बनवाई और पुल तैयार किए। मैदान अराफात में पानी का एक हौज़ बनवाया। बहुत सी नई नहरें खुदवाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पर मदीना मुनव्वरा में सैलाब आ गया था, जिससे मस्जिद नबवी को नुकसान पहुँचने का खतरा पैदा हो गया। तो वहाँ पर आपने एक बाँध बनवाया और तिजारत के लिए जद्दा में एक बंदरगाह की भी तामीर करवाई। ये मक्का मुकर्रमा के नज़दीक थी। मक्का के लोग जो पहले बाहर तिजारत के लिए जाते थे, शैबा के मुकाम से जाते थे, जो वहाँ से काफ़ी दूर था। इससे उन लोगों को काफ़ी सहूलियत हो गई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर दीन और इस्लाम की तरक्की और तरवीज का दौर था। इस दौर में बेशुमार गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हुए। इस वजह से महसूस किया जाने लगा कि मस्जिदुल हराम की तौसीह की जाए, यानी उसको थोड़ा वसी किया जाए, बढ़ाया जाए। इससे पहले हज़रत उमर के दौर में भी ये काम हो चुका था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने आस-पास के दीगर मकान खरीदे और मस्जिद हराम के सहन को वसी करके एक दालान तैयार करवाया। बाकायदा 4 दीवारी तैयार करवाई और मिस्र से आने वाले बेशकीमती कबाती कपड़े से ग़िलाफ़े काबा तैयार किया। इसके बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 29 हिजरी में तौसीह करवाया। यानी उसकी जो कच्ची दीवारें थी उनको पत्थर का बनवाया और जो छत थी उसको साख के पत्तों यानी साख के तख्तों से बनवाया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु जब से खलीफा बने थे तब से इस काम की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन जो मस्जिद नबवी के आस-पास लोग आबाद थे ना, उनकी मस्जिद से जो कुर्बत थी, उसको वो छोड़ने को हरगिज़ भी तैयार नहीं थे। यानी वो नहीं अपने घरों को देना चाहते थे या बेचना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम मस्जिद के आस-पास ही रहें। बिलाखिर 5 साल की मुसलसल कोशिश के बाद ये काम हो पाया, लोग तैयार हो गए, उन्होंने अपने घरों को फ़रोख्त कर दिया। मतलब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको खरीद कर और मस्जिद नबवी को वसी करवाया। इसे 84 मीटर की चौड़ाई रखी गई, मतलब चौड़ाई तक बड़ा किया गया, जबकि लंबाई वही रही जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में हुई थी, मतलब उन्होंने भी बढ़वाया था मस्जिद नबवी को। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के फर्स्ट टाइम जो उन्होंने काम शुरू किए, उस पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। उनका सबसे पहला काम था आपने बैतुल माल से
मुअज़्ज़िनों की तनख्वाह मुकर्रर की। मुअज़्ज़िन की तन पहले मुअज़्ज़िन तनख्वाह पे नहीं होते थे, अब जो काम ये आज तक चलता आ रहा है और मुअज़्ज़िन को तनख्वाह दी जाती है आज भी। दूसरा था उनका ज़कात को लोगों की मर्ज़ी पर छोड़ दिया कि वो अपने माल की ज़कात खुद दें, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की हालात बहुत अच्छे हो गए थे और उनकी जो ज़कात थी हज़रत उमर के टाइम पे तो देनी ही पड़ती थी बोल के वो काफ़ी सख्त थे इस मामले में। लेकिन इन्होंने उनकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया कि लोगों के अब हालात ठीक है और खुद ही ज़कात निकालेंगे और उसके बाद उन्होंने ईद की नमाज़ से पहले खुतबे का आगाज़ किया, यानी जो खुतबा ईद की नमाज़ से पहले होता है, उनके दौर से शुरू हुआ और उन्होंने फर्स्ट टाइम ज़मीनों पर लोगों का मालिकाना हक दिया, जिसकी वज़ह से आगे चल के प्रॉब्लम भी हुई। मतलब ये एक फ़ितने का बाइस भी बना। बैतुल माल के जानवरों के लिए चारागाह की तामीर करवाई। जो बैतुल माल के जानवर होते थे, उनके लिए चारागाह बनवाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकबीर में अज़ान की निस्बत आवाज़ नीचे रखने का हुक्म दिया। सबसे पहले पुलिस का महकमा भी इन्हीं के दौर में शुरू हुआ। इन्होंने ही पुलिस का महकमा बनाया। आप सबसे पहले खलीफा थे जो अपनी वालिदा की ज़िंदगी में खलीफा बने। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम मुसलमानों को एक किरात पर मुत्तफ़क़ किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले मस्जिद में मकसूरा की तामीर करवाई, ताकि जो हज़रत सैयदना उमर रज़ी ताला अन्हु के दौरान नमाज़ शहीद किया गया था, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु को दौरान नमाज़ शहीद किया गया था, ऐसी सूरत-ए-हाल दोबारा कभी ना हो सके। आप रज़ी ताला अन्हु ने जो वज़ीफ़े जारी किए उसकी मिक़दार इतनी थी कि लोग फ़िक्र और मसाइल से आज़ाद हो जाएँ। आप रज़ी ताला अन्हु ने मस्जिदों में बख़ुरात जलाने का रिवाज कायम किया, जिसे ज़ाफ़रान को सॉरी जुमे की नमाज़ में पहली अज़ान के बाद दूसरी अज़ान का इज़ाफ़ा किया। जो बख़ुरात जलाए जाते थे मस्जिदों में, उनमें ज़ाफ़रान का यूज़ किया जाता था। तहफ़्फ़ुज़ कुरान अली रज़ी ताला अन्हु के दौराए खिलाफत में सबसे बड़ा और उम्दा कारनामा तजमिया और तहफ़्फ़ुज़ कुरान हुआ, जमाए कुरान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जो फ़तूहात का दौर शुरू हुआ, वो काफ़ी टाइम तक जारी रहा। इससे मुसलमानों जो हज़रत उमर के दौर में फ़तूहात का दौर शुरू हुआ था, वो हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु के दौर खिलाफत तक जारी रहा और मुसलमानों में बहुत सारे लोग शामिल हुए, अलग-अलग कंट्री के और मुसलमानों में शान-ओ-शौकत की रेल-पेल शुरू हो गई। इससे जो बाहरी इससे क्या हुआ कि बाहरी ख़यालातों का भी असर पड़ना शुरू हुआ क्योंकि बाहर से भी लोग आए और बहुत से बाहर के लोग जुड़े। इस्लामी फ़तवात के बाद बाहर के लोगों में जिस तरह कुरान मजीद का जो राइज था या इंट्रोडक्शन जो किया गया वो अजमी अजमी यानी बाहरी कुरान के असली जो बाहरी लोग थे कुरान के असली मानों से हट कर नए-नए मफ़हूम अपने एक्सप्लेनेशन शामिल करने लगे, जो काबिल तवज्जो थे। हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु ने जब खिलाफत सँभाली, तो उनका ध्यान उस तरफ गया। ज़्यादातर अजमी कुरान मजीद को बिना समझे तिलावत करते थे। इससे कुरान में अल्लाह की बयान की गई तालीमात की रूह मुतासिर हो रही थी और अगर इस पर गौर ना किया गया तो इसको ना बचाया गया उन्होंने ये सोचा कि अगर इसको ना बचाया गया तो हर बंदा अपने-अपने तरीके से उसको समझने लगेगा, उसमें कुछ चीज़ें नज़रियात अपने शामिल करता रहेगा। इसको ना बचाया गया तो हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक नज़रियात अपने-अपने शामिल करता रहेगा और इससे नुस्खे में चेंज होने का खदशा बढ़ जाएगा, यानी डर बढ़ जाएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये महसूस किया कि कुरान मजीद की किरात और लफ्ज़ों की अदायगी से अरबी लफ्ज़ों के साथ-साथ अजमी तलफ़्फ़ुज़ भी शामिल होने लगा।
इससे एक नई सूरत-हाल पैदा हो रही थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में नहीं हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद का एक नुस्ख़ा जो था तहरीर करवाया था अकबर साहबा कराम से। वह हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मौजूद था। उसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मँगवाया और उससे बेशुमार कॉपी तैयार करवाई और सारी इस्लामी सल्तनतों में भिजवा दी, सारे गवर्नरों को भिजवा दी और ये इस्लामी सल्तनतों में फैला दी। एक रिवायत में आता है कि कुरान मजीद की सूरतों और किरात में इख्तिलाफ के लिए हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमन रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास और हमराज़ और करीबी दोस्त थे और वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के भी काफ़ी करीबी थे, हज़रत उस्मान के भी काफ़ी ख़ास थे। उन्होंने अज़रबैजान, अर्मानिया, इराक और शाम में मुसलमानों को किरात करते सुना, उनकी तिलावत को देखा, तो उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की तवज्जो इस जानिब करवाई कि इसका इलाज ना किया गया इट्स ओके बस थोड़ा रह गया। अगर इसका इलाज ना करा गया तो इससे जो है ना इसमें इस पर तवज्जो उन्होंने करवाई और उन्होंने ये सोचा कि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो फिर कुरान के नुस्खे में कुछ दिक्कत आ जाएगी और कुछ चेंज होने का खदशा बढ़ जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु से कुरान का नुस्खा मँगवाया, जो कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जमा किया था और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही में एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई, जिसमें कुरान की हर आयत को 2-2 गवाहों की शहादत के साथ कलमबंद किया गया और जब पूरा मुकम्मल हो गया तो एक बार फिर तस्दीक की गई और उसकी नई और कई नकलें तैयार की गई। पहले के तमाम नुस्खों को ख़त्म कर दिया गया और इस कॉपीज़ को अरब के तमाम इलाकों मुल्क शाम, इराक, ईरान, यमन, बहरीन, शुमाली अफ्रीका, तुर्किस्तान और दीगर इलाकों के गवर्नर को भी भिजवाया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कुरान मजीद जिस रस्मुल ख़त्म की तहरीर किया गया, वो उस्मानी के नाम से मशहूर हुआ और इसी के मुताबिक काफ़ी अरसे दराज तक कुरान मजीद की कॉपीज़ बनती रहीं और ये कुरान की तहरीर 25 हिजरी के अव्वल में यानी शुरू में मुकम्मल हुई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ज़ाती निगरानी में इसको मुकम्मल करवाया, इसकी तस्दीक की। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु लुग़त कुरैश अरब के माहिर थे, इसलिए कुरान मजीद को कुरैशी लुग़त के मुताबिक तहरीर किया गया। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के इस अज़ीम कारनामे के बारे में फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में खैर के सिवा कुछ मत कहा करो। खुदा की कसम उन्होंने जो किया वो हम सब के मशवरे और इत्तेफाक राय के साथ किया। कुरान मजीद के जायज़ लुग़त को मनसूख करके इसे अव्वल कुरैश लुग़त में जमा करवाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि इख्तिलाफ़त किरात की सूरत में लोग एक दूसरे को कहने लगे थे कि मेरी तुमसे बेहतर है और मैं जो पढ़ता हूँ वो सही पढ़ता हूँ और ये फितना हो जाता है, जिसे हज़रत उस्मान ने अपने अहम फ़िरासत में ख़त्म कर दिया और कुरान एक किरात पर जमा किया ताकि कोई इख्तिलाफ़ ना हो। मुफ़स्सिरीन ने बयान किया है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में हाफ़िज़ कराम को जो कि जंगों में हिस्सा लेते थे और काफ़ी हाफ़िज़ कुरान शहीद हुए, जिसकी वज़ह से इस बात का ख़दशा पैदा हो गया कि जो कुरान उनके दिलों में महफ़ूज़ है वो ख़त्म ना हो जाए। तो उन्होंने एक नुस्ख़ा तैयार करवाया था और उसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रखवा दिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो नुस्ख़ा तैयार करवाया था, उस पर ये इबारत लिखवाई थी। हज़रत उस्मान ने जो ये उस्मानी मुसहफ़ है उसमें ये इबारत लिखी हुई है कि ये नुस्ख़ा है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की जमात ने इत्तेफ़ाक किया, उनका इज्माए तमाम आयतें कुरानी पर है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कारनामा रहती दुनिया तक के मुसलमानों पर एक एहसान अज़ीम है और इसी वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हु को जामाए कुरान कहा गया।
इस इतनी शानदार फ़तूहात और शानदार अज़ीम कारनामों के बावजूद भी लोगों ने एतराज़ात शुरू कर दिए और इस हद तक बढ़े ये एतराज़ात कि इन्होंने एक बड़े फ़ितने में फ़ितने का जामा पहन लिया, यानी बड़े फ़ितने में तब्दील हो गए, जिसका रिज़ल्ट भी बहुत ख़राब रहा। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अस्मा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर चढ़कर फरमाया, तुम्हें दिखाई दे रहा है जो मैं देख रहा हूँ? तो सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे घरों में फितनों की फितनों को इस तरह बरसते देख रहा हूँ जैसे कि बारिश बरसती है। आगे जो शाफ़िया कंटिन्यू करेंगे। शाफ़िया, ओवर टू यू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी एतराज़ात और इल्ज़ामात की बात हुई है, तो मेरा मौज़ू इसी पे ही है। शुरू करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लाम के दुश्मनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाओं पर बहतान लगाए और ये सिलसिला आज का नहीं, पुराना है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर साजिश करने वालों ने पहले आप पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, लाशऊरी तौर पर आवाम नास को अपने साथ मिलाने के लिए साजिशें की और बिल आखिर अपने नापाक हाथों को अमीरुल मोमिनीन के पाकीज़ा खून से लाल कर लिया। तो आइए जो इल्ज़ामात और एतराज़ात अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उन पर नज़र दौड़ाते हैं और फिर हर इल्ज़ाम का जवाब तलाश करते हैं। तो पहला और बड़ा एतराज़ ये किया जाता है कि मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को तरजीह देकर खलीफा क्यों बनाया गया। तो जो लोग मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मर्तबे को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर रखते हैं, तो उन्हें अहले सुन्ना ने गुमराह बिदअती करार दिया है। लेकिन जो लोग मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मर्तबे को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऊपर रखते हैं, उन्हें अहले सुन्ना गुमराह या बिदअती नहीं कहते, बल्कि उन्हें गलत करार देते हैं कि वो ये बात गलत कर रहे हैं या वो गलती पर हैं। क्योंकि इस मौजू पर बाज़ वक्त स्कॉलर बहुत गलत बयानी करते हैं कि मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा न चुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा जिन सहाबाओं ने चुना, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखा किया है, माज़अल्लाह। इब्न तैमियह से रिवायत है कि अहले सुन्ना इस बात पर राजी थे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंचे मर्तबे वाले सहाबी थे। मसला ये नहीं था कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से किसका मर्तबा आला है, बल्कि जिसने खिलाफत या अहले बैत से इनकार किया वो गुमराह है। और अगर मर्तबा देखा जाए तो दोनों ही बुलंद मर्तबे वाले थे। बुखारी की हदीस के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 रुकनी कमेटी बनाई थी। अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और कहा कि इनमें से एक को खलीफा चुन लें। ये हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, 6 रुकनी कमेटी के बारे में। और उस वक्त क्या हुआ था, ये उस वक्त हुआ था कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा चुना। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा चुना और हज़रत ज़ुबैर ने अपना खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चुना था। तो 6 रुकनी कमेटी 3 रुकनी में तब्दील हो गई थी। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि मैं पहले भी 2 खलीफा के साथ वज़ीर था, लिहाजा आप दोनों में से जो खलीफा बनेगा मैं उसके साथ वज़ीर ही रहूँगा। अब सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचे थे और अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जज बन गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है राय आम्मा जानी, लोगों में गए, लोगों से पूछा डेमोक्रेसी यानी मेजॉरिटी किसके साथ है। ज़्यादातर लोग हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चाहते थे और इसकी वजह सिर्फ एक थी
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ڈسپلنڈ اور بہت سخت خلیفہ تھے، اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی سب کو پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پر مسلط ہو جائیں گے، اور انسانی طبیعت سختی برداشت نہیں کرتی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نرم دل کے تھے، اور ان کی عمر بھی اس وقت 70+ تھی۔ تو سب کے مشورے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کنارے لے جا کے پوچھا کہ اگر میں علی کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کی بیعت کریں گے؟ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں کروں گا۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنارے پر لے کر انہوں نے یہی سوال ان سے بھی پوچھا، تو ان کا بھی یہی جواب تھا۔ تب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ لوگ اس وقت حضرت عثمان سے بڑا کسی اور کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنتا ہوں۔ اور خلیفہ چنتے ہی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ایک دوسری پارٹی کے حساب سے۔ صحیح بخاری سے روایت ہے کہ جس سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا، واپسی میں آپ کی نکسیر پھوٹ گئی، تو طبیبوں نے آپ سے کہا کہ آپ بچیں گے نہیں، تو اس وقت لوگوں نے زور لگایا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں کوئی فطور ہوتا نعوذ باللہ، تو اس وقت کسی کو بھی اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے تھے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ انہیں سمجھ تھی کہ یہ کوئی ملوکیت والا معاملہ نہیں ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا۔ آپ کی شہادت کے بعد جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، اس وقت کسی ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ 6 رکنی کمیٹی میں صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بچے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیعت کسی کی بھی نہیں ہوئی، بند کمروں میں یہ بیعت نہیں ہوئی تھی، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں آ کر خطبہ دیا کہ یہ لوگ میرے کندھے پہ خلافت کا بوجھ ڈال رہے ہیں، اور میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بھار کو اٹھاؤں، تو تم طلحہ، زبیر، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے تھے اس وقت تک، اور سعد ابن ابی وقاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو، اور میں تینوں خلیفہ کے ساتھ وزیر رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا۔ طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں موجود سب نے کہا کہ آپ کے مرتبے کا یہاں کوئی نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور پر بیعت کو راضی ہی نہیں تھے۔ اب دوسرا اعتراض آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے۔ بعد میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ صحیح بخاری سے روایت ہے کہ ایک شخص جو مصر سے تھا، خارجی تھا، آیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نہیں تھے؟ تو آپ نے کہا ہاں نہیں تھے۔ حضرت عثمان غزوہ احد سے بھی بھاگ گئے تھے؟ آپ نے کہا جی صحیح ہے۔ اس نے کہا صلح حدیبیہ میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے؟ آپ نے کہا ہاں نہیں تھے۔ اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اور جانے لگا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تمہارا پہلا سوال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں نہیں تھے، تو اس کا جواب سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کے عقد میں تھی وہ بیمار تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی ان کی تیمارداری کے لیے۔ دوسرا تو نے کہا کہ احد سے بھاگ گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کلام پاک میں آپ کو معاف فرما دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے عافیت کا معاملہ کیا ہے، تو اب وہ معاف ہو چکے ہیں، قرآن میں آ چکا ہے۔ رہا صلح حدیبیہ کا موقع، تو حضرت عثمان سے معزز شخص ہی اس وقت نہ تھا، کیونکہ حضرت عثمان کی ہی قتل کی افواہ پھیلی تھی،
تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے دست مبارک کی طرف اشارہ کر کے، اور عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت کرو۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا معزز شخص نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کہا تھا۔ اب جہاں تک غزوہ احد کی بات ہے، یاد ہوگا سب کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک ٹکڑی کو پہاڑ پر مقرر کیا تھا، اور ساتھ ہی تاکید کیا تھا کہ چاہے دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں یا ہم ہار گئے ہیں، یا پھر مال غنیمت کو تقسیم ہوتے ہوئے بھی دیکھو، تو بھی جب تک کہا نہ جائے نیچے مت اترنا۔ لیکن ہوا اس کا الٹا۔ پھر خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، انہوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ صحاباؤں کے پیر اکھڑ گئے۔ اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے صحاباؤں کے قدم اکھڑ گئے۔ چند صحابہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، باقی سب وہاں سے فرار ہوئے، یہاں وہاں ہوئے، اور ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہاں ایک شور برپا تھا کہ مسلمانوں کے نبی جنگ میں شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ خالد بن ولید کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کن جنگ کے لیے دوبارہ حملہ کیا۔ جب شکست کھائے صحابہ جو کہ زخموں سے چور تھے کو ان کے دوبارہ حملے کی خبر ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر ملی، تو انہوں نے بھی حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اب فرار اختیار نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے ان صحاباؤں کو معاف کر دیا تو ہم مسلمانوں کو ان کی تنبیہ کرنے سے باز آنا چاہیے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم کے جمع کرنے کے معاملے پر سیدنا عثمان پر الزامات لگائے گئے کہ آپ نے بدعت کو ارتکاب کیا۔ ایک اور الزام ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جلایا۔ اب دیکھیں کہ عرب کے لوگوں کو اپنی یاد دہانی پہ بڑا ناز تھا، وہ چیزوں کو زبانی یاد کر لیتے تھے، بڑے بڑے شاعرانہ کلام زبانی یاد ہوتے تھے، اور اس پر بہت فخر بھی کرتے تھے۔ جب کلام پاک نازل ہوا تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سن کر یاد کر لیں، یعنی نمازوں میں سن کر یاد کر لیں۔ اتنے مضبوط ان کے حافظے تھے۔ ان کی ہی طرح بہت سے صحابہ موجود تھے جن کے حافظے بہت مضبوط تھے۔ بخاری سے روایت ہے، لیکن جب بخاری سے روایت ہے جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس جنگ میں کئی حفاظ شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ جو بکھری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے، کہیں ہڈیوں پہ، کہیں چھال پہ، کہیں لکڑی کے تختوں پہ، کہیں چھالوں پہ، اسے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور 2 گتوں کے بیچ کتابی شکل میں لایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے پیروکار تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں وہ کام کیوں کروں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بحث کرتے رہے کہ یہ بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا۔ پھر طے پایا کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتب وحی تھے، ان کو بلایا گیا، ان کے سامنے بھی معاملہ رکھا گیا، وہ بھی شروع میں نہیں مانے، پھر صحاباؤں کے سمجھانے کے بعد وہ بھی مان گئے۔ اور بخاری میں روایت ہے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے مدینے کے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کو کہتے تو وہ میرے لیے آسان کام ہوتا۔ کلام پاک کی ذمہ داری لگانا ایک پوری امت کے اعتبار سے یہ میرے اوپر بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی۔ زبانی لوگوں کو یاد تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام لکھوائے ہیں ان کے ساتھ کاؤنٹر ویریفائی کیا جائے، اور اس کے لیے طے پایا کہ جو کچھ بھی لکھا جائے گا یا جو بھی قلم بند کیا جائے گا اسے 2 بندے لکھت میں جسٹیفائی کریں گے، مطلب وہ کلام کنہیں 2 بندوں کے پاس ہونا چاہیے، وہ بھی لکھے میں قلم بند۔ لیکن ایک آیت کا ذکر ہے جس کا لکھت ریکارڈ صرف ایک بندے کے پاس تھا،
صحیح بخاری میں وہ بندے تھے خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی کے پاس مل ہی نہیں رہا تھا۔ یاد یاد تو تھا صحاباؤں کو کہ یہ آیت ہے، مگر لکھت میں دوسرا ریکارڈ نہیں تھا۔ پھر صحابہ کو یاد آیا کہ ان کی تو گواہی ہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آیا۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ ایک جانور کا سودا کیا، اور جب گھر واپس گئے رقم لینے کے لیے تو پیچھے سے کسی نے زیادہ قیمت لگا دی، تو وہ یہودی مکر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اس نے کہا آپ نے سودا ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے نہ دو، تم مجھے بھلے نہ دو، پر کم از کم مجھے جھوٹا تو نہ کہو۔ وہ بولا نہیں، آپ نے سودا ہی نہیں کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو گواہ لائیں۔ گواہ کوئی تھا نہیں۔ تو حضرت خزیمہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے سودا کیا ہے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ جب یہودی چلا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے کیوں گواہی دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں، یہ تو بہت چھوٹی سی گواہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ، قرآن کریم پہ، آخرت پہ، جنت، دوزخ، سب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بتائی، یہ مسئلہ تو بہت چھوٹا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشتے ہوئے کہا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، مگر جہاں میرا خزیمہ آ جائے گا تو اس کی ایک گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اب یہ معجزہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ظاہر ہوا۔ اس طریقے سے ہر آیت کو 2 ریٹن ریکارڈ سے ٹیلی کر کے ایک مصحف تیار ہوا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ام المومنین سیدہ حفصہ کو اسے سپرد کر دیا۔ قرآن کی قرات کو قریش کی قرات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروا کر باقی سارے کے سارے ڈائلیکٹس کو، چاہے وہ کسی بھی فارم میں موجود تھے، انہیں جلوا دیا۔ سارے نسخے جلا دیے گئے تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو پائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہم نے آذربائیجان کی جنگ کے لیے رشیا پر حملہ جب ہم کرنے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ہم جب رومن اور پرشین امپائر، جو کہ اب مسلمانوں کے انڈر میں تھی، کہ لوگوں کو جہاد کے لیے ابھار رہے تھے، جب ہم وہاں پہنچے تو 2 لوگوں کو دیکھا ایک ہی قرآن کی صورت کو مختلف انداز میں پڑھ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے سب نان عربز تھے تو ان کی بولی اور انداز الگ ہوتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرمانے لگے، اے امیر المومنین، امت کو تباہی سے بچائیں، امت میں تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھایا گیا نسخہ منگوایا۔ کہیں پر بھی اختلاف کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے قریش کی قرات میں ریٹن ریکارڈ کرایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخری حصے میں مصحف عثمانی تیار ہوا۔ ہم اس لیے اسے مصحف عثمانی نہیں کہتے کہ اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا، بلکہ اسے قریش کی قرات میں انہوں نے ہی اسٹیبلش کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کیا، اگر میں بھی ان کے دور میں ہوتا تو میں بھی یہی کچھ کرتا۔ امت پر احسان ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے قرآن جمع کروایا، تو یہ غلط ہے۔ آپ جمع کروانے والوں میں سے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لکھوایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جگہ 2 گتوں کے درمیان کیا، اور مختلف قرات کا جو اختلاف تھا اس کو ختم کر کے قریش کی قرات میں اس کو اکٹھا کر کے حضرت عثمان نے ایک جگہ اسٹیبلش کیا، جو آج مصحف عثمانی کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ علی بن موسیٰ المعروف
बी इब्न ताऊस अपनी किताब में नकल करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, अल्लाह की किब्रियाई का ख्याल करो, अमीरुल मोमिनीन उस्मान के बारे में गुलूब से बचो और उनके बारे में अपनी इस बात से बाज आ जाओ कि वो कुरान को जलाने वाले हैं। सैयदना अली की गवाही सैयदना उस्मान के हक में। अल्लाह की कसम, उस्मान ने जो कुरान करीम के नुस्खे जलाए थे वो कोने खुदरे में छुपकर नहीं जलाए थे, बल्कि सहाबा की जम्मे गफीर के सामने जलाए थे और उम्मत को एक ही नुस्खे पर इकट्ठा किया था। किसी एक सहाबी ने भी उस्मान के इस अमल पर एतराज नहीं किया। इस मसले पे सहाबियों का इज्मा हुआ था। एक एतराज ये था कि सैयदना उस्मान ने अपने लिए चारागाह खास कर ली थी। ये एतराज भी बातिल है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़ात के लिए कोई चारागाह नहीं बनवाई थी, बल्कि आपसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चारागाह बनवाई थी। क्यों? सबके ऊँट, बैतुल माल के जानवर और मुजाहिदीनों की सवारियाँ, उनकी खुराक के लिए चारागाह का इंतज़ाम किया जाता था। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाबरकत दौर आया, जिसमें फुतूहात बहुत ज़्यादा हुई और मुल्क के मुल्क मुसलमानों की मिल्कियत में दाखिल हुए, जितना जिहाद ज़्यादा होगा, जितनी फ़ौज बढ़ेगी, उतनी ही सवारियाँ भी बढ़ेंगी। जितने माले गनीमत के जानवर ज़्यादा होंगे, उतनी ही चारागाह बड़ी करनी पड़ेगी। तो ये एतराज़ करने वाले कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़ात के लिए चारागाह बढ़ा ली थी, झूठ बोलते हैं। वो चारागाह बैतुल माल के जानवरों के लिए ख़ास थी, ना कि अमीर उस्मान की ज़ात के लिए। एक एतराज़ कि उन्होंने अबू ज़र गफ़ारी को ज़िला वतन किया, ये भी झूठ पर मबनी है। अमीर उस्मान ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया, बल्कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बज़ाते खुद मकामे रब्ज़ा पर जाकर तन्हाई इख्तियार करने को पसंद किया था और अमीरुल मोमिनीन ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली, उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम किया और उनके आराम और ज़रूरत की तमाम चीज़ें देकर उन्हें रवाना किया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माजूल किया, ये भी एक इल्ज़ाम है। मुल्क शाम और दमिश्क के गवर्नर अमीर मुआविया और अबू दरदा के दरमियान कुछ तल्ख कलामी हो गई थी। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो निहायत ज़ाहिद और आबिद और वहाँ के फाजिल काजी थे, वो अपने मामलों में कुछ ऐसी सख्ती किया करते थे जिस तरह अमीर उमर के दौर में सख्ती हुआ करती थी। अब जो नए नए मुसलमान हुए थे वो सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मामला लिख भेजा और उनको माजूल कर दिया गया। वो वहाँ से माजूल होकर मदीना शरीफ तशरीफ़ ले आए। किसी को माजूल करना उसकी शान में गुस्ताखी नहीं थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माजूल कर दिया था, तो क्या उनकी शान में कोई कमी आ गई थी? ऐसा तब होता है जब उन पर कोई इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। अमीर उस्मान पर एक एतराज़ ये कि उन्होंने हकम बिन अब्दुल आस को वापस बुला के खिलाफ शरीयत काम किया। हकम बिन अबुल आस, इनका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उन पर रसूलुल्लाह ने पाबंदी लगा दी थी कि ये ना मक्का में रह सकते हैं ना मदीने में, और उन्हें ताइफ जाने का हुक्म दिया गया था। और बकौल अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हकम पर भी लानत और उसकी औलाद पर भी लानत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद हकम को वापस लाने के लिए जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाज़त मांगी गई, तो उन्होंने कहा था कि हो ही नहीं सकता, हकम कैसे वापस आ सकता है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो ये बात मुमकिन ही नहीं। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी वापसी की कोशिश की, तो उन्होंने भी मना फरमा दिया। तो जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत दौर में वो हकम को वापस ले आए। मुसलमानों ने जब इस पर एहतजाज किया तो आपने कहा कि मैंने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी सिफारिश की थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें हुक्मरान बनाए तो अपनी हुक्मरानी के दौर में इसे ले आना। तो मुझे उनकी इजाज़त मिल गई थी। तो जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, तो आपने
आपने उस इल्म की बुनियाद पे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त की बुनियाद पर हकम बिन अबी उल आस को वापस बुलाया। वरना ये कैसे हो सकता है कि वो शख्सियत जिसने खिताब करते हुए बलवाइयों से यहाँ तक कहा था कि अल्लाह की कसम, जब से मुसलमान हुआ हूँ मैंने अपना ये दायां हाथ जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया है, उसके बाद मैंने दाएं हाथ से कभी अपनी शर्मगाह को भी नहीं छुआ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? ये भी एक झूठ है। फिर एक एतराज़ कि सफ़र में कसर का भी एतराज़ था। कुछ लोगों ने जो नए-नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, वो नमाज़ कसर के हवाले से फ़ितने में मुब्तला हो गए थे और वापस जाके अपने घरों के अंदर भी उन्होंने 2 रकत नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। सफ़र में भी 2 रकत नमाज़, क्योंकि वो नए मुसलमान हुए थे, तो वो समझे ही नहीं। वो ये समझे कि नमाज़ हो ही 2 रकत गई है, तो उन्होंने 2 रकत पढ़ना शुरू कर दी। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसला समझाने के लिए कि 4 रकत नमाज़ घटी नहीं है, तो सफ़र के दौरान भी 4 रकत नमाज़ ही बाकी रखी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने इस मसले पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाराज़गी का इज़हार किया। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि पिछले साल यमन से जो हाजी आए थे, उन्होंने 2 रकत नमाज़ पढ़ी और वापस जाकर वो यही समझे कि नमाज़ 2 रकत ही है। अपने घर में क़याम की हालत में भी उन्होंने 2 रकत नमाज़ ही पढ़ना शुरू कर दी। इसलिए मैंने इस फितने से बचने के लिए नमाज सफ़र के दरमियान भी 4 रकत पढ़ी हैं। ये सुनकर इब्न औफ उठे और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और सारा मंजर बयान कर दिया। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे मालूम है अमीरुल मोमिनीन ने 4 रकतें नमाज पढ़ी हैं। इन फितनों के पेश नज़र मैं भी अपने साथियों को 4 रकतें नमाज पढ़ाता हूँ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि मैं भी आज के बाद ऐसा ही करूँगा। एक एतराज़ कि अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुल्क के शाम का गवर्नर बनाया। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाया था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें उनके ओहदे पर बरकरार रखा। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल को नकल किया है कि मैंने अमीरुल मोमिनीन उस्मान के बाद, और फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाज़ा था, कि इस दरवाजे वाले शख्स यानी मुआविया से बढ़कर हक के साथ फैसला करने वाले किसी को नहीं पाया। इब्न कसीर एक और गवाही नकल करते हैं कि जो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि मैंने मुआविया से बेहतर सल्तनत और हुकूमत के अखलाक वाला शख्स किसी को नहीं पाया। जब उमैर बिन साद अंसारी को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माजूल करके उनकी जगह पे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया, तो लोगों ने कहा कि ये देखो उमर ने ये क्या कर दिया, उमैर को माजूल करके मुआविया को वाली बना दिया। तो उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ऐ लोगों, मुआविया के बारे में अपनी ज़ुबान को जब भी हरकत दो तो खैर और भलाई के साथ दो। मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले सुने हैं, ऐ अल्लाह, मुआविया के ज़रिए लोगों को हिदायत दे। ये जामिया तिर्मिज़ी में रिवायत मौजूद है, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह, इसके ज़रिए लोगों को हिदायत वाला बना दे, वो खुद बेहिदायता होगा। दूसरी रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मुआविया को हिदायत वाला महदी बना दे, इसके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। जिसके शान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआएं हों, उनके बारे में ज़बान को एहतियात के साथ जुम्बिश दो। तो ये कुछ एतराज़ात हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत के, जिनको मैंने मुख्तलिफ सोर्सेस से इकट्ठा किया और आपके सामने बयान किया। हालांकि ये मेरा कॉल नहीं है, फिर भी जिन सवालों का जवाब हमें ढूंढना पड़ता है, तो पहले उन सवालों को और फिर उनके जवाबों को ढूंढकर मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको मुतमईन कर दिया होगा इंशाल्लाह। कोई गलत बयानी हो गई हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ कर दे।
اس کے علاوہ اگر مجھ سے کچھ چھوٹا ہو تو آپ مجھے بتائیں، تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ جواب کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔